Good morning, students. A very happy Sunday. Today is Sunday, 4th May, and today NEET students are appearing all over India. NEET exam. All the best to them for their future, for their this exam also. आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड दैट टॉपिक इज व्हाट फंक्शंस. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट. बाकी टॉपिक धीरे धीरे हमसे बिछड़ते जाएंगे जैसे जैसे हम हायर स्टडीज में जाएंगे, लेकिन फंक्शंस जो है टिल मास्टर ऑफ साइंस इट विल फॉलो अस. तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो ऑन फंक्शंस टॉपिक. फंक्शंस के लिए हमारे पास सेट थियरी का नॉलेज होना चाहिए. व्हाट इज सेट, बहुत ज्यादा नहीं. व्हाट इज सेट, व्हाट इज सबसेट, व्हाट इज प्रॉपर सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट्स, ये थोड़ा बताते हुए फिर मैं फंक्शन से स्टार्ट करता हूं. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट टॉपिक फंक्शन. इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट सेट. द नेम ऑफ टॉपिक इज फंक्शंस. What is set? A well-defined collection of objects is called set. सेट थियरी मतलब इस फंक्शंस में मैं उतनी ही चीजें बताऊंगा. When we'll start set theory, उस समय मैं डिटेल्स अबाउट सेट्स बताऊंगा. सेट्स क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, वो सब हम डिटेल्स हम सेट थियरी में सीखेंगे. यहाँ पे मैं उतनी ही चीजें बताऊंगा जितनी हमको फंक्शंस के लिए जरूरत है. तो पहला नॉलेज था सेट. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. सेकेंड इज व्हाट सबसेट. A set A is said to be subset of set B. A set A is said to be subset of set B if all the elements of set A are there in set B. सेट ए को सेट बी का सबसेट कब कहते हैं? जब ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो. इट इज डिनोटेड एज ए सबसेट ऑफ बी. देन आफ्टर सबसेट proper subset. A set A is said to be proper subset of set B provided all the elements of set A of set A
are there in set B, ये पहली कंडीशन, और ये होने से क्या हो जाएगा, सेट A सबसेट ऑफ सेट B. Number 2 is what? Set B has at least one more element. At least का मतलब होता है कम से कम एक ज्यादा एलिमेंट. At least one more element than set A. It is denoted as A is a proper subset of B. ये जो नीचे अंडरलाइन है इक्वल, वो यहां पे नहीं रहेगा. A is proper subset of set B. In this case, B is called superset of A. And is denoted as B superset of A. After this, we need number of subsets. Number of subsets. If a set A contains n elements, then it will have 2 to the power n number of सबसेट्स. अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 to the power n. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव सम एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, A contains only one element. Subsets of A are, one is empty set. Empty set is subset of every set. And second is what? Set itself. यानी set A खुद. Therefore, number of subsets will be what? 2, which is same as 2 to the power 1, because इसके अंदर एक एलिमेंट है. Second example I'm giving you. Set B contains two elements. 1, 2. So subsets of B are empty set, singleton 1, singleton 2, then 1, 2. Number of subsets will be what? 4, which is 2 squared. 2 elements are there, so 2 squared. Third example is C is
a set containing three elements. Subsets of C are empty, singleton 1, singleton 2, singleton 3, then 1 2, 2 3, 1 3, then 1 2, 3. Number of subsets 8, which is same as 2 to the power 3. So all of you followed how many subsets are possible. Now, in the same series for functions, we'll go to what? Cartesian product of two sets. Next heading is what? Cartesian product of let A and B be two non-empty sets. Cartesian product of A and B is denoted as A cross B and is defined as A cross B is a set. It is what? Set containing elements of the type ordered pair. This is known as ordered pair AB such that the first element A belongs to first set A and second element B belongs to second set B. For example, A is what? 1, 2, 3 and B is what? 4, 5. Then A cross B will be what? Is a set whose elements are 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. Therefore, number of elements in A cross B is what? 6, which is same as 3 into 2, which is same as number of elements in A into number of elements in B. Therefore, number of subsets of now A cross B is a set, so it will have subsets. So how many subsets will be possible for A cross B? Number of subsets of A cross B is equal to 2 to the power 6, 64. Out of 64 subsets, one subset is what? Empty set, and other subset is what? Set A cross B itself. And remaining
subsets are non-empty and proper subset of A cross B. So, after this, very next important heading is what? A relation. What is a relation? Any subset of A cross B, any subset of A cross B gives a relation from set A to set B. In this case, what is the relation? Any subset of A cross B. Any. So in this case, we can have 64 subsets. So we can have 64 relations from set A to set B. In this case, first set A is called domain set. And second set B is called codomain set. I'll give you few relations from A to B. R1 is one relation 1, 4. You can see all the element of R1. There is only one element 1, 4, and that lies in A cross B. So it is subset of A cross B. So it will be a relation. R2 is another relation given by 1, 4, 2, 4, 3, 4. All the element of R2 is there in A cross B. Therefore, R2 is what? Subset of A cross B. Therefore, R2 is a relation from set A to set B. R3 is another relation given by 1, 4, 1, 5, 2, 4, 3, 4. All the elements of R3 are there in A cross B. Therefore, R3 is subset of A cross B. Therefore, R3 is a relation from set A to set B. Fourth relation R4, which is given by 1, 4, 2, 4, 3, 5. All the elements of R4 are there in A cross B. Therefore, R4 is a subset of A cross B. Therefore, R4 is a relation from set A to set B. Like this, R64 relations are possible. And one of them is what? Empty. And one of them is what? Set A cross B itself. Now, immediately after relation, when we'll discuss details about relation, then we'll go to what types of relation: reflexive, symmetric, transitive, then equivalence relation. Okay? And that is another part, but we are mainly focusing on functions. So we'll move further.
नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट? फंक्शन। रिलेशन क्या दिखाई दिया? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, any subset of A cross B gives a relation from set A to set B. In this case, first set A is called domain set and second set B is called codomain set. Now next heading is what? Function. What is function? So in this case, there are 64 relations. So out of 64 relations, few relations are functions. इसका मतलब क्या हो गया? फॉर फंक्शंस, फंक्शन होने के लिए रिलेशन होना बहुत जरूरी है. ऑल फंक्शंस आर नथिंग बट रिलेशंस, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट नेसेसरी टू बी फंक्शंस. तो कौन से रिलेशन फंक्शंस होते हैं? नाउ विल सी दैट. एक एक वर्ड को ध्यान दीजिए. इट इज द रिलेशन, it is the relation in which all the elements of domain set all the element of domain set A. Domain set is what? A. Are related to one and only one element of codomain set B. All the element of domain set, all are related to one and only one element of codomain set B. अब देखते हैं इन अबव एग्जाम्पल्स. R1, is it a function? तो आंसर इज नो. Why no? R1 is not a function as all the element of domain set A. अब डोमेन सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3, तीन एलिमेंट थे. तो R1 में सिर्फ 1 का रिलेशन 4 के साथ है, बाकी 2 और 3 का रिलेशन दिख रहा है क्या R1 में? नहीं. R1 is not a function as all the element of domain set A are not related in R1. तो कौन से एलिमेंट का रिलेशन नहीं है? फुल स्टॉप. 2 and 3 of domain set A are not related. एक एक चीज को ध्यान रखो. तो इसका मतलब क्या हो गया? डोमेन के सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, और किसके साथ होना चाहिए? एक और केवल एक एलिमेंट के साथ. कोडोमेन के एक और केवल एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए. R2, इज इट अ फंक्शन? अब डोमेन में 3 एलिमेंट थे, ए में 3 एलिमेंट थे, 1 2 3. 1 का भी रिलेशन है, 2 का भी रिलेशन है,
3 का भी रिलेशन है, but are they related to one and only one element? Yes, one is related to only one element, 2 is also related to only one element, 3 is related. So R2 is a function as all the element of domain set A are related to one and only one element of कोडोमेन सेट बी। अब हम देखते हैं R3। R3 is not a function. Why R3 is not a function? क्योंकि डोमेन का डोमेन सेट ए का एलिमेंट 1 जो है वो एक और केवल एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं है। 1 का रिलेशन 4 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है। ठीक है, R3 is not a function as element 1 of domain set A is related to two different elements. 4 and 5 of कोडोमेन सेट बी। एक और केवल एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए, जबकि ये क्या है, 2 अलग एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, इसलिए फंक्शन नहीं। R4 is a function as all the element of domain set A are related to one and only one element of कोडोमेन सेट बी। देखो 1 का रिलेशन एक ही एलिमेंट के साथ है, 2 का रिलेशन भी एक ही एलिमेंट के साथ है, 3 का रिलेशन एक ही एलिमेंट के साथ है। One and only one does not mean same element. It may be same element as in R2, it may be different element as in R4. तो वन एंड ओनली वन का मतलब सेम एलिमेंट होता है ऐसा नहीं है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम चलेंगे बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन। अब फंक्शन जो है 2 टाइप के हो गए, एक है 1 to 1 यानी डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, और दूसरा फंक्शन क्या है, मेनी टू 1 यानी डोमेन का बहुत सारा एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, उसको कहते हैं मेनी 1। वन मेनी एंड मेनी मेनी आर जस्ट रिलेशंस, दे आर नॉट फंक्शंस। अभी तक की डेफिनेशन के हिसाब से फंक्शन 2 टाइप के हैं, आगे चल के 2 टाइप और आएंगे, इस तरह से 4 टाइप के फंक्शंस हो जाएंगे। तो कौन से 2 टाइप के फंक्शंस अभी हमने सीखा है, functions are of
following two types. Number one, one. इसको ही आगे चल के हम लोग क्या बोलेंगे? इंजेक्टिव, INJECTIVE, इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. एंड सेकेंड इज व्हाट? मेनी वन. अभी तक हमने जो डेफिनेशन दी, इसमें प्रायोरिटी किसको दिया था? डोमेन के. ऑल द एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट, all the element of domain set, all the element of domain set are related to one and only one element of codomain set. कोडोमेन के बारे में नहीं कहा कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट फंक्शन में पार्टिसिपेट करने की नहीं है. अब हम चलेंगे कोडोमेन के कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट? रेंज सेट. अब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हमने रखा हुआ है. रेंज सेट. तो इसमें हमारे पास एक R2 फंक्शन है, दूसरा R4, और ये दोनों फंक्शंस नहीं है. R1 इज नॉट अ फंक्शन, R3 इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट? रेंज सेट. Those elements of codomain set, कोडोमेन यानी सेकेंड सेट. कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट, those elements of codomain set which are participating in the function are kept in one set. That set is called रेंज सेट. कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट जो फंक्शन में सहभाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको अगर एक सेट में रखें, उसी सेट को क्या कहते हैं? रेंज सेट. फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे मैंने दो फंक्शन दिए, R2 और R4. रेंज सेट ऑफ R2 क्या हो जाएगा? यानी कोडोमेन का कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है? 4. सिर्फ 4. और सेकेंड, रेंज सेट ऑफ R4. R4 में कोडोमेन का कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है? 4 और 5 दोनों. 4, 5. तो रेंज सेट कहां से निकल रहा है? कोडोमेन सेट. रेंज सेट कहां से निकल रहा है? कोडोमेन सेट से. इसलिए रेंज सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट. Range set is always subset of कोडोमेन सेट. अब याद करो, सबसेट के बारे में बताया था मैंने. सबसेट दो टाइप के हैं. एक है प्रॉपर, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट. इसके सारे एलिमेंट यहां हैं और इसमें कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा है, तो दिस सेट इज व्हाट? प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस. और एक इम्प्रॉपर हो गया, या यू कैन से इक्वल. ठीक है. तो बेस्ड ऑन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट वी गॉट 2 more types of functions.
One is what? Into, and other is what? Onto. Into function. If rend set is proper subset of codomain set, if rend set is proper subset of codomain set, then the function is into function. तो इसमें into function कौन सा है? R2. याद करो कोडोमेन क्या था? B, एंड B के दो एलिमेंट थे 4 और 5. इसके सारे एलिमेंट यहां है और B में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा है, इसलिए R2 इज व्हाट? Ren set of R2 is what? Properly containing B. R2 is into function. The next heading is what? Onto function. If Ren set codomain set, then the function is onto function. R4 is onto function. अब इस तरह से हमारे पास फंक्शंस चार टाइप के हो गए. कौन कौन से चार टाइप के? आप बोलोगे 1 1, मेनी 1, इनटू, ऑनटू. तो मेरा आंसर है रॉन्ग. तो राइट क्या है? Therefore, functions are of following four types. Number 1, 1 1 and into. into और onto अलग से नहीं आएगा, वो 1 1 और many 1 के साथ ही आएगा. सेकंड है and onto. थर्ड वन many 1 and into. Fourth is what? Many 1 and onto. As I told, 1 1 को क्या कहते हैं? इंजेक्टिव, और onto को कहते हैं सर्जेक्टिव. तो नोट, onto function is known as surjective. Therefore 1 1 and onto is known as injective and surjective. जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है उससे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. डायग्रामेटिकली it can be represented as follow. ये पहला सेट होता है डोमेन सेट, सेकेंड सेट होता है कोडोमेन.
ये एलिमेंट्स है जो डॉट करके बना रहा हूं। ये किस टाइप का फंक्शन हो गया? मेनी वन एंड ऑन टू। अगर यहां पे कोई एलिमेंट बच गया जिसका रिलेशन नहीं है, तभी वो इनटू होगा। यहाँ पे सारे एलिमेंट का रिलेशन है और कोडोमेन में भी उतने ही एलिमेंट है, इसलिए ऑन टू फंक्शन हो गया। अब यहां एक एलिमेंट बच गया, मेनी टू वन है लेकिन एक बचा हुआ इसलिए इनटू हो जाएगा। मेनी वन एंड इनटू। वन वन एंड इनटू। अब ये डोमेन सेट का एक एलिमेंट बच गया, ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, इट इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, तो वन मैनी हो गया, नॉट अ फंक्शन। It is 1 1 and on 2. If f is a function from set A to set B, then it is written as f. We put two dots such that it is a function from set A to set B. If x belongs to set A, x belongs to A, then fx belongs to B. In this case, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने आप को मिरर के सामने खड़े कर दो। तो मिरर में क्या दिखाई दे रहा है? आपकी इमेज। आप तो इधर हो, उसमें क्या दिख रहा है? इमेज। तो यहां पे मिरर क्या है? एफ। एफ में एक्स क्या बनता है? एफ एक्स बन जाता है। तो एफ एक्स इज व्हाट? इमेज। और इस एफ एक्स इमेज का एक्स क्या है? प्री इमेज। वो मेरी इमेज है, उस इमेज का मैं क्या हो गया? प्री इमेज। ठीक है, मिरर में मैं क्या क्या दिखाई दे रहा है? इमेज। और उस इमेज का मैं क्या हो गया? प्री इमेज। ये फिजिक्स नहीं है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, यहां पे क्या करते हैं? प्री इमेज। एक्स इज हियर, एफ एक्स इज इमेज ऑफ एक्स
fx is image of x and x is प्री इमेज। प्री जो है शॉर्ट फॉर्म है प्रीवियस का। प्रीवियस का मतलब बिफोर, पहले, इमेज के पहले, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्री इमेज। एक्स इज प्री इमेज ऑफ एफ एक्स। तो फ्रेंड्स, सबको समझा यहां तक फंक्शंस क्या है? फंक्शंस के लिए व्हाट इज सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड देन फंक्शन। फंक्शंस के कितने टाइप्स हो गए? 1 1 एंड इनटू, 1 1 एंड ऑन टू, मेनी 1 एंड इनटू, मेनी 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू को दूसरे वर्ड में इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव को एक वर्ड में कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर एफ एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये किस टाइप का फंक्शन हो कि इसका इनवर्स, यानी एफ इनवर्स विल बी अ फंक्शन फ्रॉम, अब इसी में देखो, मेनी टू वन हो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 टू मेनी। तो मेनी 1 का इनवर्स कभी मेनी 1 का इनवर्स हो ही नहीं सकता है। मेनी 1 फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन किसका इनवर्स फंक्शन होगा? सिर्फ 1 1 का। और 1 1 में भी दो है, ये 1 1 ऑन टू है, ये 1 1 इनटू है। तो 1 1 इनटू का भी इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब हम यहां एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, तो एफ इनवर्स कहां से होगा? बी से ए की तरफ होगा। तब इसमें एक एलिमेंट बच गया है, तो डोमेन का एक, ये डोमेन बन जाएगा। डोमेन का एक एलिमेंट फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो क्या होगा? उसका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। सिर्फ 1 1 एंड ऑन टू का इनवर्स फंक्शन होगा। 1 1 ऑन टू को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। उसका एक कॉमन वर्ड है बाइजेक्टिव। तो सिर्फ इनवर्स बाइजेक्टिव फंक्शन का ही एग्जिस्ट होगा। ठीक है? तो एज अ नोट आई एम गिविंग यू, ओनली if f from set A to set B is 1 1 1 1 and on to, that is injective and surjective, that is bijective, function has inverse as a function. Therefore, f inverse from B to A will be a function. तो अगर f 1 1 एंड ऑन टू हो, उसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव हो, उसी को तीसरे वर्ड में बोलते हैं बाइजेक्टिव हो फंक्शन, तभी उसका इनवर्स फंक्शन होगा। नाउ विल गो टुवर्ड वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस।